Hope the screen is visible to everyone. Is the screen visible to everyone? Is the screen is visible to everyone? सबको दिखाई दे रहा है screen? Yes, sir. Okay. So since you have already delayed about few classes, and during this very major part of the circuit has also been taught in the study zone. So I'm just going to take your class to give you the backup. Maybe one, not two or three class according to the requirement or according to the progress. I will continue this class during this session. That is from 7:40 to merely hardly 1 hour. Okay. So before going to start, I'm just going to open the window now. Okay. So today I will discuss about electrical engineering. Okay. Electrical engineering. So electrical engineering, whatever you have taught in the classes, that is in study zone, that is obviously very far away or very advanced portion of your from the first class or second class. So now I will give you some backup of the previous classes which you have missed. Okay. So before going to the electrical engineering, we have to know the fundamentals of electrical engineering. That is, that what are the main basic criteria for electrical engineering? Or I can say in electrical engineering, the design of different type of devices can be uh, illustrated or can be modified by using several types of electrical elements. That is electrical elements. Electrical elements. So these electrical elements are basically maybe active elements or passive elements. Maybe they are directly involved in the function of the circuit, or maybe they are indirectly affect the function of the circuit. So we will know about this, and after this we will see how they can be connected into the circuit and how they can be analyzed by using different types of theorems, laws, and whatever it may be, different types of analysis, mathematical analysis, derivatives, and all of this. Okay, so before going to start the main things, that is circuital parts, we have to know how the electrical elements can be classified, as well as how the circuit has to be classified into different categories depending upon the elementary part of the electrical elements. So before going to start any electrical elements, first we have to know how they can be connected into a circuit, or how the circuit will look. Okay, because after that, after all, after knowing about the electrical elements, we have to implement these electrical elements in the circuit itself. So before going to know about electronics elements or electrical elements, we have to know how which type of circuit, or how the circuit can be classified into different categories in which my electrical elements has to be implied. Okay, for that purpose, we can divide the entire electrical circuit into four categories. Okay, that circuit is also known as network. Electrical circuit is also known as electrical network. Network means arrangement. Okay, network means arrangement. So we have to know how the electrical network can be classified, so that we can apply the electrical elements into that electrical network. So electrical network basically is of four types. That is, first one is node, second one is branch, third one is loop, and the last but not the least is mesh. These are the basic characteristics or basic types of electrical network. That is node type electrical network,
branch type electrical network, loop type electrical network, and mesh type electrical network. So first of all, we move to the node. That is node. What is node and how they can be used in electrical network. So node is, suppose there is a circuit having a point, meeting point or exit points. Let it be like this. So this is the point at which all the networks element will be connected with each other. Like अगर तुम लोग अपना घर का अगर वायरिंग देखोगे, अभी तुम जिस रूम में बैठे हो उस रूम का अगर स्विच बोर्ड देखोगे, तो देखोगे स्विच बोर्ड का स्विच जो कनेक्टेड है डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ कनेक्टेड है. सो आई कैन से दिस इज, इफ दिस इज द स्विच and it is connected to, suppose this is tube light, this is tube light, as well as this switch also connected with the power supply. That means घर में जिससे पावर तुम लोग का आता है. तो ये जो स्विच बोर्ड है और ये जो स्विच है with respect to this network is can be considered as a node. ठीक है. So node basically it is the junction in a circuit where two or more network elements are connected together. So अगर node को हम define करेंगे, so I can write node is the, it is the junction in a circuit where two or more network elements are connected together. Okay, so this is the node. So now after node there is a branch. Now move to the branch. So node समझ में आया सबको? What is node? Yes, sir. Okay. Now branch. ब्रांच. तो ब्रांच क्या कहेंगे? सपोज तुम्हारा स्विच बोर्ड कनेक्टेड है, ये तुम्हारा स्विच है, स्विच फैन के ट्यूब के साथ कनेक्टेड है. ठीक है. और एक स्विच जो है ये तुम्हारा फैन के साथ कनेक्टेड है, दैट इज फैन के साथ. और एक जो स्विच है ये रेफ्रिजरेटर के साथ कनेक्टेड है, ये स्विच. ठीक है. नाउ देखो ये हर एक स्विच जो है यहाँ पे पावर के साथ कनेक्टेड है, पावर सप्लाई, पावर सप्लाई. सो देखो ये कलेक्शन ऑफ नोड, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टोटल जो स्विच बोर्ड है वो तुम्हारा, वो स्विच है वो तुम्हारा जो है एक बोर्ड में एक साथ जुड़ा हुआ है, एक स्विच बोर्ड में. ये नहीं कि दीवार में जिस साइड में तुम्हारा फ्रिज है वहां पे एक स्विच लगा हुआ है, ट्यूब के लिए अलग स्विच लगा हुआ है, फैन के लिए अलग स्विच लगा है, टीवी के लिए अलग स्विच लगा है, कि दीवार के चारों तरफ स्विच ही स्विच है हर एक एलिमेंट के लिए. तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट स्विच, नंबर ऑफ स्विच को एक साथ क्या करते हैं, एक स्विच बोर्ड में इंस्टॉल करते हैं. ठीक है. वहां पे अगर कुछ कुछ जगह पे होता है फ्रिज का कनेक्शन अलग रहता है. ठीक है. बट विदाउट कंसिडरिंग दिस टॉपिक हम लोग देखते हैं स्विच बोर्ड. स्विच बोर्ड में अगर तुम देखोगे, अगर तुम्हारे घर में रूम में अभी स्विच बोर्ड है तुम्हारे आसपास, तो देखो स्विच बोर्ड में क्या है, एक ही बोर्ड के ऊपर 3 या 4 स्विचेस इंस्टॉल किया हुआ है, और हर एक स्विच जो है अलग अलग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के साथ जुड़ा हुआ है. सो ब्रांच इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ नोड. ठीक है. कलेक्शन ऑफ जंक्शन को एक ब्रांच कहते हैं. लाइक तुम्हारा बेडरूम में जितना स्विच बोर्ड है, हर एक स्विच बोर्ड इंडिविजुअल, एक स्विच बोर्ड एक ब्रांच का काम करेगा. सपोज बेडरूम में तुम्हारे स्विच बोर्ड में 3 स्विचेस है, सो दैट 3 स्विचेस विल वर्क एज अ ब्रांच. अब फिर डाइनिंग रूम में जाओ, डाइनिंग रूम में भी 3-4 स्विच मिला के एक स्विच बोर्ड बनाया गया है, तो वो और एक ब्रांच है. तो ब्रांच इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ जंक्शन. तो अगर ब्रांच को हम लोग डिफाइन करेंगे,
branch is collection of nodes, or it lies between two or more nodes। ठीक है, अगर दो स्विच बोर्ड को लेके हम एक स्विच बोर्ड बनाते हैं, दो स्विच को लेकर हम स्विच बनाते हैं, तो वो होगा एक ब्रांच। तो मोर देन वन नोड्स, टू और मोर नोड्स को मिला के जो मेरा एक बंच ऑफ कलेक्शन ऑफ नोड बनता है, उसको हम कहते हैं ब्रांच। नेक्स्ट इज लूप। सो एज यू लूप, ये लूप तुम बार बार सुने हो, तुम्हारा सी प्रोग्रामिंग में भी लूप है। ठीक है, लूप मतलब क्या है? एक ही जगह पे बार बार घूमना। दैट इज, सपोज तुम घर से कॉलेज जाते हो, फिर कॉलेज से घर आते हो, तो ये रेगुलरली तुम ये 3 साल तक करते रहोगे। सो दैट इज अ लूप। ठीक है, सो इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी और इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लूप इज नथिंग बट अ क्लोज पाथ, क्लोज्ड पाथ, ठीक है, क्लोज पाथ, नो एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स और node is encountered more than once. Like, I am going to show you a circuit. Just an example. Suppose तुम्हारा यहाँ से वोल्टेज सप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टर है, यहाँ पे इंडक्टर है, और ये एक पाथ है, और यहाँ पे और एक पाथ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक वोल्टेज और एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो देखो क्लोज पाथ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्लोज पाथ कितना है, ये एक क्लोज पाथ है और ये एक क्लोज पाथ है। नो एलिमेंट्स और नोड इज एनकाउंटर मोर देन वंस, दैट मीन्स नो नोड, एक बार ये नोड एनकाउंटर हुआ तो इससे ज्यादा नोड इंप्लीमेंट नहीं होगा इस लूप के लिए। सो लूप बेसिकली इज ए क्लोज पाथ हैविंग नॉट मोर देन वन नोड। ठीक है, सो ये है लूप का एक्चुअल डेफिनेशन। लूप इज अ क्लोज पाथ। तो लूप इज अ क्लोज पाथ, क्लोज पाथ having node not more than one, that is the loop। next thing है मेश। मेश, so basically mesh are and loop are equivalent, but in case of loop it is a single mesh, ये single loop है। ठीक है, बट मेश क्या हो सकता है, एक सर्किट में इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मोर देन वन मेश कैन बी देयर। ठीक है, लूप एक सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक ही लूप होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लूप पकड़े तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, बट मेश में क्या करेंगे, ये दोनों को, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस सर्किट, कि ये दोनों को हम कंसीडर करेंगे। तो लूप क्या होगा, एक सर्किट के लिए, एक तुम्हारा नेटवर्क के लिए एक ही लूप होगा, दैट इज क्लोज पाथ। ठीक है, मेश क्या होगा, मेश इज नॉट अ मेश इज ऑल्सो ए क्लोज पाथ, बट एन electrical network consists more than one mesh inside it। like तुम घर से जा रहे हो, पहले स्टडी जोन जा रहे हो, ठीक है, फिर स्टडी जोन से घर आ रहे हो, फिर यहाँ से कॉलेज जा रहे हो, फिर कॉलेज से घर आ रहे हो, फिर घर से जा रहे हो दोस्त के घर, ठीक है, दोस्त के घर जा रहे हो, फिर आ रहे हो। तो ये जो तीनों है अलग अलग, ये तीनों अलग अलग इंडिविजुअल मेश कहलाएगा। और सिंस
ये एक क्लोज पाथ है, तो ये ऑब्वियसली मेस कहलाएगा। तो मेस और लूप का यही अंतर है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। ये क्लोज पाथ होगा, बट लूप क्या होगा, एक नेटवर्क में सिर्फ एक ही लूप होगा। दैट इज तुम घर से कॉलेज आ रहे हो, कॉलेज से घर जा रहे हो, इन बीच कहीं पे नहीं जा रहे हो। ठीक है, कहीं पे नहीं जा रहे हो, घर से सिर्फ कॉलेज आ रहे हो, कॉलेज से घर जा रहे हो। ठीक है, तुम्हारा सोर्स एंड डेस्टिनेशन विल नॉट बी चेंज। बट इन केस ऑफ मेस, मेस क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में मोर देन वन मेस हो सकता है। कि तुम एक बार घर से पढ़ने जाओ, फिर घर रिटर्न आओ, फिर घर से कॉलेज जाओ, घर रिटर्न आओ, फिर दोस्त के घर जाओ, फिर रिटर्न आओ। दैट इज थ्री मेसेस आर देयर। So equivalently meaning, internal meaning, literally loop and mesh equivalent meaning होता है, but एक ही फर्क है, लूप एक सर्किट में एक ही बार होता है, रिपीट नहीं होता है। मेश एक सर्किट में मोर देन वन होता है। ठीक है, तो ये चार टाइप का नेटवर्क वी विल सी इन आवर इलेक्ट्रिकल सर्किट इंप्लीमेंटेशन। नाउ मुझे नेटवर्क के बारे में पता चल गया। नाउ वी हैव टू नो how this network can be developed by using different type of elements. So before going to different types of elements, we have to know how the elements will be classified। ये एलिमेंट होता क्या है और क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है इस एलिमेंट का। ठीक है, सो इसके लिए क्या करेंगे, आई हैव टू नो अबाउट द एलिमेंट। एलिमेंट, सर। हाँ बोलो। सर बोल रहे मैथ्स और लूप के बारे में और एक बार समझा दीजिए ना सर। देखो मेस क्या होता है, मेस एक क्लोज पाथ है। मेस को समझने से पहले हमको लूप समझना पड़ेगा। लूप क्या है, सेम पाथ, पाथ तुम्हारा ऑल्टर नहीं होगा, सेम पाथ तुम्हारा रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। यहाँ पे पाथ ऑल्टर नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। लाइक अभी तुम घर से कॉलेज जा रहे हो और कॉलेज से सीधा घर रिटर्न करोगे। ठीक है, तुम्हारा ये डे टू डे लाइफ है, तुम्हारा और कोई पाथ हो नहीं सकता। तो ये हो गया एक लूप। तुम्हारा जो स्टडी लाइफ है, ये लाइफ जो है एक लूप में चल रहा है, दैट इज कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, दूसरा कोई पाथ है नहीं। लूप, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। दैट इज लूप इज द क्लोज पाथ हैविंग, एक मिनट रुको, रिक्वेस्ट आ रहा है स्टूडेंट का, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। ओके, सो लूप जो होता है तुम्हारा रिपीट, लूप के अंदर सिर्फ एक ही नोड रहता है। ठीक है, वन नोड इज इन लूप। और ये लूप जो होता है कभी तुम्हारा चेंज नहीं होता है। लूप, पर्टिकुलर लूप, सेम लूप विल बी फॉलोड ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ द नेटवर्क। लाइक तुम्हारा जो स्विच का है, स्विच बोर्ड जो है, स्विच बोर्ड जो है इलेक्ट्रिक तुम्हारा ट्यूबलाइट के साथ कनेक्टेड है वो, और दूसरा स्विच बोर्ड तुम्हारा फैन के साथ कनेक्टेड है। तो ये स्विच बोर्ड ऑन करते ही तुम्हारा फैन में सप्लाई जाता है, ऑफ करते ही तुम्हारा फैन से सप्लाई ऑफ होता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, ये तुम्हारा टोटल लूप में चलता है कि स्विच से फैन तक पावर जाएगा, अगर स्विच ऑफ करोगे तो अगेन पावर कट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द कंपैरिजन। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि फैन और स्विच का कनेक्शन लूप में है। ठीक है, और तुम्हारा अगर तुम एंटायर घर का कनेक्शन ले लो, तो तुम्हारा नेटवर्क मेन तुम्हारा मीटर बॉक्स से तुम्हारा घर का हर एक सर्किट में सप्लाई आ रहा है। और ये क्लोज लूप है कि तुम्हारे घर के अलावा किसी दूसरे के घर में तुम्हारा मीटर बॉक्स ऑब्वियसली करंट सप्लाई नहीं जाता है। तो तुम्हारा जो सप्लाई आता है, पावर सप्लाई जो मीटर बॉक्स से आता है, वो तुम्हारे घर में ही सीमित रहता है। ठीक है, दैट इज द लूप। एक ही लूप में तुम्हारे घर के अंदर ही वो करंट सप्लाई कंटिन्यू हो रहा है, लूप। मेस क्या होता है, सपोज तुम्हारा घर, घर में जो पावर सप्लाई होता है, तुम पावर सप्लाई को क्या किया, तुम्हारा घर में पावर सप्लाई ले लिए, फिर एक्सटेंशन कॉर्ड लगा के वही पावर को तुम दूसरे घर में सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो वहां भी क्या हो रहा, एक क्लोज पाथ है कि तुम्हारे घर पावर सप्लाई, तुम्हारे घर में जो पावर सप्लाई है वहां से तुम्हारे घर में एक क्लोज पाथ ले रहा है, और तुम्हारे घर से जो पावर सप्लाई जा रहा है दूसरे घर में, वहां पे भी एक क्लोज पाथ ले रहा है। ठीक है, सो नाउ सपोज तुम कॉलेज से घर जा रहे हो। ठीक है, घर से कॉलेज आ रहे हो, इसके दौरान बीच बीच में तुम स्टडी जोन में पढ़ने आ रहे हो। तो घर से स्टडी जोन, फिर स्टडी जोन से घर, ये इंडिविजुअल क्लोज लूप है। ठीक है, दो इंडिविजुअल क्लोज लूप है। फिर तुम्हारा मन किया एक दिन दोस्त के घर गए, तो दोस्त के घर आए घर से, फिर दोस्त के घर से अपने घर आए, तो और एक क्लोज लूप बन गया, और एक क्लोज पाथ बन गया। ठीक है, सो ये होता है एक मेस।
तो बेसिकली अगर हम देखेंगे लिटरली मेस में तुम्हारा एक नेटवर्क में लाइक तुम्हारा स्टडी लाइफ जो है ये एक नेटवर्क है। तुम्हारा नेटवर्क में हाउ मेनी क्लोज लूप यू आर एक्सपीरियंसिंग, दैट इज घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। सेकेंड वन इज घर से स्टडी जोन, स्टडी जोन से घर। फिर थर्ड ऑप्शन इज घर से तुम्हारा दोस्त के घर, दोस्त के घर से तुम्हारा खुद के घर। सो दीज आर द लूप्स, these are the close path. So three close path you are facing and this is known as maze। और सिंप्लीफाई अगर इसको करेंगे तो लूप होता है सिंगल तुम्हारा क्लोज पाथ, और कलेक्शन ऑफ लूप होता है तुम्हारा कलेक्शन ऑफ लूप होता है मेस। लाइक योर नोड एंड ब्रांच, नोड होता है तुम्हारा जहां पे पॉइंट ऑफ जंक्शन, और कलेक्शन ऑफ नोड होता है ब्रांच। सिमिलरली लूप और मेस में होता है, लूप होता है क्लोज पाथ और कलेक्शन ऑफ लूप होता है मेस। समझ में आया? यस सर। Okay. So now move to the different type of electrical elements. That is electrical elements. So electrical elements how many types का हो सकता है? अगर मैं बोलूंगा which type of students you are? So there are various kind of options. Some will say that sir मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, some will say that कि मैं खेलना अच्छा लगता है, some will say that मुझे सर कुछ काम करना ही अच्छा नहीं लगता, सोने में बहुत अच्छा लगता है। कोई बोलेगा मैं मूवी देखने में बहुत अच्छा, मूवी देखना बहुत अच्छा है। तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स एक्टिविटी के वाइज इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर। That is first one is active elements and second one is passive elements। So like your voice change, active passive, ठीक है। active voice किसको कहते हैं? तुम लोग voice पढ़े हो इंग्लिश में। So what do you mean by active voice? पढ़े हो ना एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वॉइस चेंज में इंग्लिश में। यस और नो? यस और नो तो बोलो कोई। अगर नहीं पढ़े हो तो मैं थोड़ा दे दूंगा कि कैसे कॉन्सेप्ट दूंगा। हाँ बोलो। वाला सर, हाँ ग्रामर में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। हाँ, तो ग्रामर में क्या क्या होता है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है? उसमें सर एक सेंटेंस आता है, उसको एक्टिव वॉइस बनाना होता है, फिर उसका पैसिव बनाना पड़ता है। क्यों, क्या होता क्या है? ये तो कन्वर्शन बोल रहे हो तुम। होता क्या है, चीज क्या होता है? एक सेंटेंस को बनाना पड़ता है, वही ना सर, वही एक्टिव पैसिव वॉइस है कि फिर दूसरा कुछ है? हाँ, तो सेंटेंस बनाना पड़ता है, लेकिन होता क्या एक्चुअल? देखो, हम दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है, नंबर ऑफ सेंटेंस विल बी एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे मैं क्लास कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्लास कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास कर रहा हूँ, ये है एक्टिव। मैं तुम लोग का क्लास ले रहा हूँ, ये है एक्टिव, ठीक है। तुम लोगों को मेरा क्लास करना पड़ रहा है, ये है पैसिव। सपोज आई एम सेइंग, ठीक है, आई आई डू, ठीक है, या आई डू दिस थिंग्स, ठीक है, ये हो गया एक्टिव। दैट मीन्स डायरेक्टली आई एम इन्वॉल्विंग, मैं क्लास कर रहा हूं। तुम लोग जो ये क्लास कर रहे हो, ऑब्वियसली तुम लोगों का कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। जो भी कर रहे हो अपने अपने लिए कर रहे हो, दैट इज एक्टिव, ठीक है। तुम अपना इनिशिएटिव लेके क्लास कर रहे हो, दैट इज एक्टिव वन। पैसिव कब होता? सपोज यही अगर मैंडेटरी होता, जो आज का क्लास करना ही पड़ेगा, सो यू आर फोर्स टू डू दैट क्लास, दैट इज पैसिव, ठीक है। तो एक्टिव में क्या है, बाहर से कोई फोर्स देने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, तुम खुद ब खुद ये क्लास ज्वाइन कर रहे हो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, यू विल लीव द क्लास, यू विल लीव द क्लास, ठीक है। तो ये हो गया एक्टिव। पैसिव क्या है? सपोज कॉलेज में क्लास करना पड़ रहा है, लाइक तुम लोगों का हिस्ट्री क्लास, ठीक है, सब पढ़े हो हिस्ट्री क्लास, ठीक है। हिस्ट्री क्लास में क्या है, कोई जान पूछ के नहीं जाता है, ठीक है, रूटीन में है, तुम्हें अटेंडेंस मेंटेन करना है, स्कूल से कट नहीं मार सकते हो, टीचर आ रहे हैं तो तुम लोगों को जबरदस्ती वहां पे बैठाया जा रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। तो ये हो गया पैसिव।
तो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? जो एलिमेंट तुम्हारा नेटवर्क में खुद से सप्लाई देता है, पावर सप्लाई देता है, दैट इज एक्टिव एलिमेंट। या खुद इन्वॉल्व होके पावर को फ्लक्चुएट करता है, दैट इज एक्टिव एलिमेंट। लाइक योर ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या करता है? एम्पलीफाई करता है, डी एम्पलीफाई करता है, दैट इज ट्रांजिस्टर। खुद से वो पावर को मैनिपुलेट करता है या खुद से सप्लाई को मैनिपुलेट करता है, वो है एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट क्या है? रेजिस्टर, कैपेसिटर के वो एलिमेंट में लगता है लेकिन वो खुद से नहीं लगता, उसके लगने के बाद ही उसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा सर्किट का एनालिसिस होता है, बट वो खुद से कुछ सप्लाई नहीं करता या खुद से वोल्टेज को तुम्हारा मॉडिफाई नहीं करता या सोर्स में कुछ मैनिपुलेशन नहीं करता है, दैट इज पैसिव वॉइस। तो in short, active element are those elements which can provide extra energy to the circuit, that is active element, like your battery। बैटरी का जो सेल है, तुम अगर कोई पावर सप्लाई ना दो, एक बैटरी लगा दो रिमोट पे, तो बैटरी खुद ब खुद वहां पे पावर सप्लाई देगा। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर देखोगे एक पावर जनरेट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म कर देता है पावर को। ठीक है। या हाई करके या लो करके, स्टेप अप और स्टेप डाउन, दैट इज एक्टिव एलिमेंट। ठीक है। तो एक्टिव एलिमेंट आई कैन से दोज एलिमेंट व्हिच कैन enhance the energy level of an electrical signal in network। ये हो गया एक्टिव एलिमेंट, लाइक बैटरी, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। पैसिव एलिमेंट क्या है? ये सिर्फ पास करने के लिए सिग्नल को पास कराता है, व्हिच कैन ओनली पास द इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू इट ठीक है, विदाउट involving in any kind of power enhancement। ये हो गया पैसिव एलिमेंट, लाइक योर रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। ठीक है। ये सिर्फ पास करवाता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करवाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ता नहीं है, ठीक है, या एनहांस नहीं होता है। क्योंकि रेजिस्टर में तुम कभी नहीं देखोगे वोल्टेज, करंट अगर रेजिस्टेंस के थ्रू पास किया तो करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, या वोल्टेज सप्लाई दिए और उसको कनेक्ट कर दिए एक रेजिस्टर से, तो रेजिस्टर के थ्रू पास हो रहा है तो वो एनहांस कर रहा है। तो एनहांसमेंट का पावर जो है वो पैसिव एलिमेंट में नहीं है, एक्टिव एलिमेंट में है। ठीक है। सो नाउ according to this classification of element, now we are going to move the connection mechanism of those elements। ठीक है। तो और ये एलिमेंट्स का मैं कनेक्शन मैकेनिज्म पढ़ूंगा। तो यहाँ पे सिंस यू आर इन द प्रिलिमिनरी स्टेज, so first of all we know about we are connecting the active element like battery or power supply, this is the active element, with passive element रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अगेन रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर में तुम लोग एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज में हो, फर्स्ट टाइम बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो, तो वी विल डीलिंग विद मोस्ट ऑफ द केसेस विद रेजिस्टर ओनली। ओके, एंड इन अपकमिंग क्लासेस यू विल सी in upcoming classes you will see how inductor and capacitor also connected to a supply। so now ये हो गया मेरा एक्टिव एंड ये हो गया पैसिव। सो एक सर्किट को फॉर डिजाइनिंग अ नेटवर्क
मेरा मेन एलिमेंट क्या है? मेन एलिमेंट, फर्स्ट वन इज I have to provide active element like source. ठीक है, मे बी बैटरी हो सकता है, मे बी एसी सप्लाई हो सकता है। ठीक है, सेकेंड थिंग है पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट, नेक्स्ट है पैसिव एलिमेंट, दैट इज रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, मेनली इन जनरल। ठीक है, मेनली फॉर योर कोर्स करिकुलम। ठीक है, अदरवाइज बहुत सारा हो सकता है, थायरिस्टर हो सकता है। ठीक है, थायरिस्टर हो सकता है, यहाँ पे थर्मिस्टर हो सकता है, बहुत सारा है। ठीक है, बट वी आर जस्ट कंसिडरिंग ऑन द रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, एंड अमंग दिस थ्री वी हैव टू कंसिडर फॉर नाउ रेजिस्टर्स ओनली। नाउ यहाँ पे मैंने बोल दिया कि मेरा एक नेटवर्क फॉर डिजाइनिंग अ नेटवर्क। नाउ नेटवर्क में आते हैं, नेटवर्क डिजाइनिंग। नेटवर्क डिजाइन, नेटवर्क डिजाइन में आएंगे तो मेरा नेटवर्क डिजाइन का पहला क्या रहेगा? सोर्स। सो आई हैव टू नो अबाउट द सोर्स। ठीक है, आई हैव टू नो अबाउट द सोर्स। I have to know about the source. Now source means through which my power has been supplied for to the network, and that source can be classified into two parts, that is AC source and DC source. ठीक है, and now first of all we will discuss about DC source. Mainly DC source are the battery source. That means this type of source, that is DC. Okay, so now we will discuss about DC source. Now मुझे पता चल गया सोर्स क्या लेना है, that is either AC source और DC source लेना है। सोर्स कहां से आएगा? ऑब्वियसली एक्टिव एलिमेंट से आएगा, that is बैटरी। ठीक है, नाउ ये सोर्स को मैं अब कनेक्ट किससे करूंगा? पैसिव एलिमेंट से कनेक्ट करूंगा। दैट सोर्स हैज टू बी कनेक्टेड विद द पैसिव एलिमेंट्स। नाउ पैसिव एलिमेंट्स, अगर मैं तुम एक नेटवर्क में, ये मैंडेटरी नहीं है कि एक नेटवर्क सिर्फ एक ही पैसिव एलिमेंट्स को यूज करके बनाया जाए। ठीक है, एक नेटवर्क में एक पैसिव एलिमेंट्स भी हो सकता है, मोर देन वन पैसिव एलिमेंट्स भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट। सो नाउ अगर मैं सपोज तुमको एक पैसिव एलिमेंट्स दे दूं, लाइक दिस इज अ पैसिव एलिमेंट्स, ये एक पैसिव एलिमेंट्स है, पैसिव एलिमेंट, एंड मैं एक सोर्स दे दूं, दैट इज डीसी सप्लाई इज डिनोटेड बाय दिस। सो यहां पे एक सोर्स दे दूं, तो हाउ यू विल कनेक्ट इट? हाउ यू विल कनेक्ट इट? तो देयर मे बी अ कनेक्शन मैकेनिज्म। कनेक्शन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। तो कनेक्शन मैकेनिज्म हम दो तरह से सोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं पैसिव एलिमेंट से। सपोज ये एक सोर्स है, यहां मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता हूं, और ये एक सोर्स है, यहां से मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता हूं, एंड दीज आर अनदर पार्ट ऑफ द circuit through which I can connect other passive elements. So these two type of connection can be possible. Otherwise, other connection cannot be possible. ठीक है, ये दो टाइप्स का ही कनेक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन मैकेनिज्म दो टाइप का है। तो डिपेंडिंग ऑन द कनेक्शन मैकेनिज्म, द एंटायर नेटवर्क कनेक्शन is classified into also two categories. One is series, पहले लिख लेता हूँ कौन सा क्या होता है, उसके बाद बताता हूँ क्यों सीरीज और पैरेलल होता है। एंड दूसरा है पैरेलल, सीरीज कनेक्शन, एंड नेक्स्ट इज पैरेलल कनेक्शन। तो देखो सीरीज कनेक्शन में क्या है, सोर्स का एक एंड, ठीक है, तुम्हारा पैसिव एलिमेंट का एक एंड के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा एंड दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होने के लिए छोड़ा गया है। ठीक है,
ये है तुम्हारा सीरीज में, मतलब एक सोर्स का एक एंड दूसरे एलिमेंट का एक एंड से कनेक्टेड है और दूसरे एलिमेंट का दूसरा जो एंड है वो नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कनेक्शन के लिए ओपन है। इन केस ऑफ पैरेलल देखो, सोर्स का दोनों ही जो आर्म है, सोर्स का दोनों ही जो आर्म है वो तुम्हारा पैसिव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, दोनों ही आर्म कनेक्टेड है पैसिव एलिमेंट का, और पैसिव एलिमेंट का भी दोनों आर्म क्या है, दूसरे एलिमेंट में कनेक्ट होने के लिए रेडी है। तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज पैरेलल, दैट इज एट ए टाइम पैरेलली all the elements can be connected with the source. सीरीज में क्या है, at a time all the elements will not connected with the source directly. पहला एलिमेंट जो है वो सोर्स के साथ कनेक्टेड रहेगा एंड दूसरा एलिमेंट है पहले एलिमेंट के थ्रू दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्टेड रहेगा। लाइक जो मैं क्लास ले रहा हूँ, एक ही साथ में सब स्टूडेंट मेरा वॉइस सुन पा रहे हैं, दैट इज पैरेलली ऑल ऑफ यू कैन एक्सेस माय वॉइस और लिसन माय वॉइस, यू कैन लिसन माय वॉइस एट ए टाइम। ठीक है, वो ये हो रहा है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन क्या हो रहा है, सपोज मैं एक मैसेज किसी एक को पास करूं कि दूसरे स्टूडेंट को बोल दो, तो वो क्या करेगा, दूसरे स्टूडेंट को बोलेगा, दूसरा स्टूडेंट क्या करेगा तीसरे को, तीसरा चौथा, ऐसा ही चेन सिस्टम में चलता रहेगा, दैट इज सीरीज कनेक्शन। नाउ यहाँ पे मैं सिंस मैं पहले ही बोल दिया हूं कि मैं सोर्स और पैसिव एलिमेंट्स में मैं रजिस्टर को लेके कंसीडर करूंगा, तो पहले मैं देखूंगा रजिस्टर जब पैरेलली कनेक्टेड होता है या रजिस्टर जब सीरीज कनेक्ट होता है तो वो क्या काम करता है और कैसे काम करता है, उसका एनालिसिस कैसे होता है। सो सपोज पहला है सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस। ठीक है, सो नाउ मुझे एक सोर्स चाहिए, एक रेजिस्टर चाहिए, सपोज फॉर वन रेजिस्टर, voltage and resistor can be denoted by R. So देखो मेरा सोर्स किस हिसाब से आ सकता है, सोर्स का दो पैरामीटर है, एक वोल्टेज पैरामीटर, एक है करंट पैरामीटर, दैट इज करंट पैरामीटर, वोल्टेज पैरामीटर एंड करंट पैरामीटर। सो नाउ यहाँ पे मेरा वोल्टेज मिल गया। Now due to this voltage, as per your electronics knowledge, voltage अगर supply होगा, that means it will give up supply, it will excite the electron inside the path, and due to excitation of the electron, electron will move. Okay, and due to movement of electron, current will be generated, and due to current will be generated, the entire current will pass through the circuit due to supply voltage. Okay, so due to this V, I will be generated, I will be generated, ठीक है, and since there is a resistor, so that resistor will give an effect or will play a vital role, because resistor will pass that current which will be generated due to supply voltage inside it. रेजिस्टर क्या करेगा, करंट को पास करेगा, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वोल्टेज सोर्स देने में। ठीक है, नाउ हम देखेंगे वो अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है। सो ये जो एनालिसिस है, ये जो एंटायर तुम्हारा कैलकुलेशन है, ये ओम्स नाम का एक साइंटिस्ट पहले बताए थे, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ओम्स लॉ। एंड ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, क्या करता है ओम्स लॉ स्टेट, क्या करता है, एनीवन, ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट, हाँ स्टेटमेंट क्या है ओम्स लॉ का, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट अच्छे से समझ लो। ठीक है, क्योंकि ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ में या इलेक्ट्रिकल सर्किट इंप्लीमेंटेशन के लिए लगेगा। सिंस आई नो दैट यू आर ऑल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इलेक्ट्रिक सीएससी बैकग्राउंड, सो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये लाइफ लॉन्ग तुम लोगों को लगेगा, बट बेसिक के लिए ये तुम लोगों को जरूरी है।
ठीक है, एटलीस्ट ये सेमिस्टर के लिए। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है अगर वोल्टेज को हम किसी सर्किट में बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसका करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, सो दैट मीन्स वोल्टेज अगर हम किसी सर्किट में देंगे तो क्या होगा? मोर इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड, मोर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड मीन्स मोर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, मोर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, दैट मीन्स मोर करंट विल बी जनरेटेड। सो इसी चीज को ओम्स ने अपने नाम का एक लॉ बना के प्रोड्यूस किया। सो सिंस ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन योर सेमीकंडक्टर डिवाइस, सो वो क्या किया, थोड़ा सा अलग किया कि अगर एक सर्किट में रेजिस्टिव मटेरियल है, दैट इज रेजिस्टर है, तो वोल्टेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, और करंट जो है, सॉरी, वोल्टेज जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टर, और करंट जो है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टर। सो ओम क्या किया, ये घुमा के नाक दिखा कि वोल्टेज जो है is 1 by sorry is directly proportional to R, and current जो है ये indirectly proportional to R। ठीक है, तो ये दोनों को कॉम्बाइन करके ओम क्या लिखे, क्योंकि दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट एक लॉ में नहीं रह सकता। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ हो जाएगा, तो ओम क्या किया, इसको कंबाइन कर दिए। ठीक है, इसको कंबाइन कर दिए। कंबाइन करके क्या बोले कि जो मेरा वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो उसके साथ करंट बढ़ेगा, और अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस अगर होगा तो मेरा ये रिलेशन फॉलो होगा, V इक्वल टू आई आर। सो ये हो गया ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ हिसाब से जाना गया, क्योंकि अगर ये रिलेशन ये देते तो ये रिलेशन में दो पार्ट होता, ओम्स लॉ फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, तो वो क्या किया, दोनों को कंबाइन करके वोल्टेज और करंट में लेके आए, क्योंकि रेजिस्टर क्या है, वो पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, वो सर्किट में यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो क्या किया, वी और आई का रिलेशन निकाले कि वी अगर बढ़ेगा आई बढ़ेगा। ठीक है, तो सिंस ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सेमीकंडक्टर डिवाइस में तुम लोगों को मिला है, तो वो क्या किया, थोड़ा सा हटके कर दिए, वी और आई को आर के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर दिए। दैट इज वी बढ़ेगा, आई भी बढ़ेगा, तभी बढ़ेगा जब आर का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, जब मेरा आर का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। सपोज यहाँ पे एक सप्लाई है, यहाँ आर हो गया 5 ओम। ठीक है, तो V अगर मैं 10 करूं, एक बार 20 करूं, एक बार 30 करूं, तो पहला V का वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट। सो 10 इक्वल टू 5 इंटू आई। सो I का वैल्यू क्या होगा, I इक्वल टू 2, दैट इज अ यूनिट एम्पियर। सेकेंड में क्या होगा, 20, दैट इज 5i। सो I इक्वल टू 4 एम्पियर। थर्ड में क्या होगा, 30, दैट इज 5i। सो I इक्वल टू 6 एम्पियर। तो देखो V यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसके साथ करंट भी बढ़ रहा है। V पहले था 10, करंट 2 था, पहले सेकंड 20, फिर 4 आया, फिर 30, फिर 6 आया। यही अगर मैं 5, 10, 15 दैट इज ओम, तीनों रेजिस्टर को भी कांस्टेंट ना लू, वेरिएबल लू, तो क्या होगा, पहला केस में V कितना है, 10 है, तो ये पहला केस में 5 इंटू आई, सो आई का वैल्यू क्या होगा, सॉरी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। सेकेंड केस में V का वैल्यू 20 है, R का वैल्यू 10 है, 10 आई। सो I इक्वल टू 2 एम्पियर। थर्ड केस में 30 है, 59। सो I का वैल्यू क्या है, 2 एम्पियर। तो देखो V बढ़ रहा है लेकिन I तुम्हारा बढ़ नहीं रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, या कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द R। सो यहाँ पे ये ओम्स लॉ वैलिडेट नहीं होता है। ठीक है, V वेरिजस I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो मुझे रेजिस्टर जो है इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी मेरा ओम्स लॉ होगा। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ओम्स लॉ, इन एन
electrical network, the voltage is directly proportional to the current, keeping resistance of the circuit constant. Keeping resistance of the circuit constant. तभी मेरा ओम्स लॉ वैलिडेट होगा. दैट इज V इक्वल टू आई आर. R इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ओके, यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? यस सर. जी सर. ओके, सो नाउ मैंने कहा था कि सीरीज में या पैरेलल में ये मैंडेटरी नहीं है कि मेरा एक ही एलिमेंट लगे. ठीक है, सो मैं सिंस सीरीज पढ़ा रहा हूं, अभी सीरीज चल रहा है, तो मैं सीरीज में अब मोर देन 2 रजिस्टर को लगाऊंगा. दैट इज सीरीज कनेक्शन. सो सपोज इन केस ऑफ more than 2 resistors in series. now क्या होगा आप देखते हैं. मेरा वोल्टेज सप्लाई सेम है, दैट इज V. ठीक है, ये डायग्राम को थोड़ा इग्नोर करना. ठीक है, क्योंकि डिजिटल पैड में थोड़ा लाइन में गड़बड़ होता है. ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है. 3 रजिस्टर लिए हम. ठीक है, और ये क्लोज पाथ कर दे रहे हैं. नाउ ये R1, R2, R3 ये हो गया V. ठीक है, नाउ तीनों रजिस्टर हम लगा दिए यहाँ पे, सीरीज में है. ठीक है, देखो तीनों रजिस्टर लगा दिए. सो नाउ देखो ये जो V है, यहां से ये करंट को सप्लाई करेगा, I जा रहा है, इसके थ्रू करंट जाएगा यहाँ पे, इसके थ्रू करंट जाएगा यहाँ पे. तो देखो पाथ सेम है, सेम करंट जा रहा है. ठीक है, तुम कॉलेज से जा रहे हो, घर जा रहे हो. ठीक है, तुम पहले सपोज चाय के दुकान में रुके. ठीक है, फिर जा रहे हो, फिर किसी दोस्त के साथ मुलाकात हुआ, बात किए, फिर जा रहे हो, फिर घर में जाकर दुकान से कुछ सामान लाए, फिर घर एंट्री कर रहे हो. तो पाथ तुम्हारा सेम है. ठीक है, एक सीरीज में चल रहा है, तो डिवाइड नहीं हो रहा है. तो सेम करंट विल फ्लो इनसाइड द सर्किट नेटवर्क व्हेन रेजिस्टर्स विल बी कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि पाथ सेम है. ठीक है, सो पहला पॉइंट क्या होगा, सेम करंट I will flow inside the entire network when R1, R2, R3 are connected in series. ठीक है, ये सीरीज में होगा जो सेम करंट फ्लो करेगा. नेक्स्ट जाते हैं, ये तो करंट हो गया. नेक्स्ट वोल्टेज. देखो यहाँ पे अगर हम R को उठा देते हैं तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा. अगर हम R को कंसीडर नहीं करते, एक एक करके उठा देते हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, लेट इट बी V1, एंड यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, लेट इट बी V2, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, दैट इज V3. 3 वोल्टेज अलग अलग डिवाइड हो रहा है, दैट इज V1, V2 एंड V3. तो देखो करंट सेम पाथ में तुम्हारा इक्वल करंट जा रहा है, बस सेम पाथ है, डिफरेंट वोल्टेज विल बी क्रिएटेड. लाइक मैं अगर इसको एग्जांपल दूं, तो सपोज तुम जा रहे हो, कॉलेज से बाहर निकल रहे हो, ये तुम्हारा कॉलेज है. ठीक है, ये तुम्हारा घर है,
ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है। तुम कॉलेज से जा रहे हो, यहाँ से सेम तुम ही हो, ठीक है, चाय के दुकान में रुके, चाय पिए, तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, सपोज 2 मिनट्स कंज्यूम हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे गए, दोस्त के साथ मुलाकात हुआ और 3 मिनट्स कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो ये 2, ये 3, फिर तुम यहाँ पे दुकान में खड़े हुए, दुकान में कुछ खरीद के घर में एंट्री मारोगे, ठीक है, क्योंकि मम्मी कह दी कि घर कॉलेज से आते टाइम ये चीज लेके आना, ठीक है। तो तुम दुकान में खड़े हुए, यहाँ पे 5 मिनट लगा और तब घर में एंट्री की। तो देखो, तुम्हारा कॉलेज से टोटल घर एंट्री होने में टोटल कितना टाइम लगा, 2 + 3 + 5, ये हो गया तुम्हारा एंटायर कॉलेज में तुम्हारा बिताया हुआ, कॉलेज से घर आने में रास्ते में तुम्हारा टाइम। तो टाइम जो है डिवाइड हो रहा है, तो सेम थिंग हैपेंस टू वोल्टेज, पाथ सेम रहेगा तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज क्रिएट होगा। तो दैट्स व्हाई सेकेंड पॉइंट, voltage V will be divided among R1, R2, R3 when all resistors will be connected in series। तो ये ऑल रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेगा, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, करंट सेम रह रहा है, ये दोनों पॉइंट तुम याद रखना, ठीक है। सो सिंस वोल्टेज अगर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई सीरीज कनेक्शन में मेरा वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज डिवीजन, सो दैट इज आल्सो नोन एज वोल्टेज डिवीजन। एंड ये जो वोल्टेज कैलकुलेट करना है कि मेरा R1 में कितना टाइम लगा, R2 में कितना टाइम लगा, R3 में कितना टाइम लगा, ये होता है थ्रू वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है, VDR, वोल्टेज डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। तो ये वोल्टेज डिवीजन रूल हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल, इसका मेन फंडा पकड़ लो, दैट इज V1, हम V1 को अगर पकड़ेंगे दैट इज वोल्टेज फॉर पर्टिकुलर रेजिस्टर इक्वल टू I इंटू दैट। सो ये हो जाएगा, I क्या होगा, तुम्हारा टोटल वोल्टेज V टोटल बाय अदर रेजिस्टर, R1 R2, बिकॉज R1 देखो यहां से मेरा R1 जा रहा है, आधा रेजिस्टेंस है, R1 जा रहा है, R1 तो होगा ही, ठीक है, R1 तो होगा ही, ठीक है। R1 किसके साथ कनेक्टेड है, R2 के साथ कनेक्टेड है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रेजिस्टेंस इनटू जिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में मैं वोल्टेज ड्रॉप कराऊंगा उस रेजिस्टर का मेरा वैल्यू, ठीक है। तो ये रेजिस्टर R1, सो ये हो गया V1 और रेजिस्टर R1। सो V2 क्या होगा, क्विक कौन बताएगा, V2 कौन होगा, क्या होगा, दैट इज V टोटल बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 multiplied with R2, क्योंकि R2 V2 is associated with R2। सिमिलरली V3 क्या होगा, V3 हो जाएगा V टोटल R1 plus R2 plus R3 dot R3। गुड डॉट R3। तो इसको हम जनरलाइज करेंगे, यहाँ पे तो मैंने बोल दिया कि 3 रेजिस्टर्स है, अगर 100 ऑफ रेजिस्टर्स होता तो क्या करेंगे, इसका जनरलाइज फॉर्म है V
voltage drop at particular resistor is equal to V total by R total, total resistance into R of particular resistor at which voltage drop will be calculated. तो ये हो गया मेरा जनरलाइज, एंड दिस जनरलाइज फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है, दिस जनरलाइज फॉर्मेट इज नोन एज वोल्टेज डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल। सो देखो यहाँ पे मेरा और एक चीज है, रेजिस्टर को हम टोटल रेजिस्टेंस क्या लेंगे, दैट इज रेजिस्टर जब सीरीज में है तो हम उसको क्या करेंगे, इफ द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, इफ द रेजिस्टर्स आर इन series, then R total, or I can say R equivalent, equal to R1 plus R2 plus R3 plus dot 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 Rn। so इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, n into R। अगर if n into R तभी लिखेंगे जब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू डॉट 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 Rn होगा तभी, अदरवाइज वी विल फॉलो दिस वन। ठीक है, ये फॉलो कब करेंगे, ये दो चीज दिमाग में रखना। ठीक है, इफ R1 नॉट इक्वल टू R2 नॉट इक्वल टू R3 नॉट इक्वल टू Rn, सब रेजिस्टर का वैल्यू अगर सेम नहीं होगा देन R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट और Rn तक करते जाएंगे। अगर सब रेजिस्टर का वैल्यू सेम हुआ तो नो नीड टू फाइंड आउट the entire summation step by step, just n into R, that is number of resistor, n equal to number of resistors and R is the value of the resistors। ठीक है, तो मैं एक ये प्रॉब्लम देके मैं क्लास खत्म करूंगा। ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम सिंपल दे रहा हूँ, तुम एक काम करो, तुम उसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करके मुझे अभी बताओ। दैट इज सपोज 20 volt is giving supply, I am giving supply, that is 2 ohm, 5 ohm, 10 ohm। ठीक है, ये जा रहा है, ये क्वेश्चन। ठीक है, ये सप्लाई हो रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट, ना पहले मैं आर इक्विवेलेंट ले रहा हूं। ठीक है, पहले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर टोटल और आर इक्विवेलेंट, what is the value of I total, that means I। third one is voltage drop across R1, voltage drop across R2 and voltage drop across R3। so V1 कितना है, V2 कितना है एंड V3 कितना है, मुझे बताओ सॉल्व करके। सॉल्व करके बताओ।
सॉल्व करके बताओ। Anyone? Anyone? होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा, यस और नो? यस सर, हो रहा है क्या? ओके ओके। कितना है वैल्यू, कुछ आया? यस सर, आर इक्वल टू आया है सर 17 ओम। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 17 ओम। गुड, नेक्स्ट। यस सर, वी इक्वल टू सॉरी सर, आई इक्वल टू 20 बाई 17 एम्पियर। 20 बाई 17 एम्पियर, दैट इज इसका वैल्यू कितना आएगा? और 20 बाई 17। सर सर V1 इक्वल टू आया है 10 बाई 17 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू 4 बाई 17 वोल्ट एंड V3 इक्वल टू 2 बाई 17 वोल्ट। देख लेते हैं, ठीक है। सो V1 कितना आया? सर V1 इक्वल टू 10 बाई 17 वोल्ट। 10 बाई 17 वोल्ट। V2 कितना आया? 4 बाई 17 वोल्ट सर। 4 बाई 17 वोल्ट। V3 कितना आया? सर 2 बाई 17 वोल्ट। 2 by 17. Okay, this is your given data. Now I will solve and see whether this data is correctly as calculated or not. Hope देख के लग रहा है करेक्ट ही होगा। 10, 15, 16, 17, ठीक है, देख लेते हैं। देखो टोटल V कितना है? That is 20 volt. ठीक है, ये solution. Now I am going for solution. Total V 20 volt. Now I have to, first question is R total और R equivalent. तो R total क्या आएगा और R equivalent कितना आएगा? That is all are in series. So R1 plus R2 plus R3. So R1 कितना आया? That is 2 plus 5 7 plus 10 17. That is 17 ohm. So first is correct. Now next टोटल I निकालना है। I इक्वल टू कितना है? सो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, V equal to IR. Okay, so now V value is given 20, I value is has to be calculated and R equal to 17. So I equal to 20 by 17 ampere. Okay, this is also
correct. This is also correct. So now next is I have to find out voltage drop across R1, voltage drop across R2 and voltage drop across R3. So पहले मैं R का वैल्यू लिख लेता हूँ 2, 5 and 10. That is the value ना 17, 2, 5 and 10 and total V का वैल्यू 20 and I का वैल्यू is 20/17. ठीक है. So now voltage drop across 2 ohm resistor, that is R1. ठीक है. तो V1 is the voltage drop across R1, that is V1 equal to V total by R total into resistor across V1, voltage drop across which resistor, that is R1. So V total का वैल्यू है 20, R total का वैल्यू है 20/17 इंटू R का वैल्यू है 2. So कितना आएगा 20 into 2 into 17/20. Total, sorry, just a minute, wrong value. R total 70, so that is 40/17 volt. ठीक है. अब समझ में आया कैसे आया? तुम्हारा कैलकुलेशन में कितना आया था 10/17. 10/17. ठीक है. एक मिनट रुको. ठीक है, एक मिनट. Am I audible? Yes, sir. ठीक है. So now देखो, now next is V1 निकल गया, तो यहाँ पे V1 मॉडिफाई होगा. गलत नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम एक कैलकुलेशन किए हो, सो तुम्हारा एनालिसिस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना. ठीक है, तुम्हें क्रॉस नहीं करना. V2 now voltage drop ohm resistor R2, so ये हो जाएगा V2. So V2 equal to V total का वैल्यू क्या है 20, R total का वैल्यू 17 into 5, so 100/17, so volt. So इसको भी थोड़ा क्रॉस चेक करो. ठीक है, मॉडिफाई करो, इसको भी मॉडिफाई करना है. नेक्स्ट इज V3 voltage drop across 10 ohm resistor, that is R3, that is V3. So V3 equal to V total 20, R total 17 into 10 ohm, so 200/17 volt. ठीक है, तो इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा. सो नाउ मुझे कैसे पता चला कि तुम्हारा आंसर मॉडिफाई करना पड़ेगा? देखो, मैं कॉलेज का एग्जांपल देके समझाया था ये बात को. ठीक है, कि तुम्हारा टोटल कॉलेज में तुम्हारा कॉलेज से घर आते हुए सपोज 30 मिनट्स टाइम लग रहा है. ठीक है, सपोज 20 मिनट्स 20 है यहाँ पे, तो 20 मिनट्स हम ले रहे हैं. 20 मिनट्स टाइम लग रहा है. 2 मिनट रुके तुम चाय के दुकान में, 5 मिनट दोस्त के साथ बात किए, 10 मिनट तुम दुकान में बिताए. ठीक है, तो देखो टोटल कितना हो रहा है. टोटल जब मैं कैलकुलेट करूंगा तुम्हारे घर से तुम्हारा कॉलेज का जो डिस्टेंस है कितने मिनट में कवर किया, तो सबको मिला के इंटायर टोटल होगा तुम्हारा
कॉलेज से घर पहुंचने में कितना टाइम लगा? यस और नो? सिंपली यस और नो? यस और नो? कि अगर मैं बोलूंगा तुम्हारा घर से कॉलेज पहुंचने में कितना टाइम लगा, ठीक है, तो तुम ऑब्वियसली जो 2-2 मिनट का गैप है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का जो तुम हॉल्ट लिए हो, उसको कैलकुलेट करके बोलोगे, हाँ या ना? Yes, sir. ओके। सो नाउ देखो, ये सर्किट में देखो, सर्किट में और कहीं भी लॉस नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे एक बैरियर है, यहाँ पे एक बैरियर है, यहाँ पे एक बैरियर है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V1 हो रहा है, V2 हो रहा है और V3 हो रहा है। तो ये V1, V2, V3 का टोटल जो समेशन होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 20 वोल्ट, क्योंकि ये सर्किट का सप्लाई है और कहीं पे भी मेरा वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, प्लेन पाथ है। ठीक है, तो मेरा मेन मोटो क्या है, मैं जितना तुम्हारा ये सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ड्यू टू सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर, टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्विवेलेंट टू टोटल वोल्टेज। अब मैं देखो V1 प्लस V2 प्लस V3 करूंगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 करूंगा, दैट इज कितना आ रहा है, 40/17 प्लस 100/17 प्लस 200/17, कितना आएगा? आई होप 340, 340/17 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है कि नहीं? 20 आया ना? सो देखो, अगर मैं टोटल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज को मिला के V1 प्लस V2 प्लस V3 20 वोल्ट, ठीक है, और सप्लाई वोल्टेज दैट इज 20 वोल्ट, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूला पुट करता हूँ, दैट इज ये जा रहा है माइनस से प्लस, सो मैं +20 लूंगा। फिर करंट का डायरेक्शन इधर ही आ रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, तो -I × R1 -I × R2 -I × R3 करूंगा, दैट इज नथिंग बट माई 20 माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3। तो समेशन कितना आएगा, कितना आएगा समेशन? क्योंकि यहाँ पे करंट आ रहा है, तो I इस पोर्शन में V का वैल्यू होगा V इक्वल टू IR, यहाँ पे भी सेम करंट आ रहा है, इस पोर्शन का वैल्यू होगा V इंटू IR, V2 इक्वल टू IR, यहाँ पे भी सेम करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो समेशन कितना आएगा, क्विक? क्विक क्विक क्विक, समेशन कितना आएगा तुम्हारा? V टोटल माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू कितना आ रहा है, दैट इज 20 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, दैट इज 0 आ रहा है। सो दिस इज नथिंग बट योर Kirchhoff's voltage law, KVL. So Kirchhoff's voltage law states that all algebraic sum of voltages are equivalent to 0. So Kirchhoff voltage law will be applicable whenever voltage division rule will be there or voltage divider rule will be there. ठीक है, तो from that KVL will be there. In next class we will see how resistors will be connected in parallel and how in that portion current division rule will be there, as well as since current division rule will be there, current KCL will be there. ओके, सो अभी तक जो भी क्लास हुआ, जितना भी हुआ, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? यस और नो? All of you are getting my points, or all of you are getting whatever I have I taught you today? Am I audible?
Am I audible? Am I audible or not? Hello. Hello, am I audible? Am I audible? सुनाई दिया था जहां तक हुआ? दैट मीन्स करंट वोल्टेज डिवीजन रूल से तुम्हारा केवीएल कैसे इंप्लीमेंट हुआ? जी सर। ठीक है, एकदम खत्म तक, एकदम जहां पे केवीएल जहां पे इम्प्लीमेंटेड हुआ वहां तक सबको समझ में आया कैसे हुआ, केवीएल इम्प्लीमेंट हुआ कैसे, और केवीएल वोल्टेज डिवाइडर रूल में कैसे अप्लाई हो रहा है? दैट इज मेरा इंटर वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडिविजुअल टोटल अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स। ठीक है, तो द एल्जेब्रिक सम के यहाँ पे डायरेक्शन देखो, मैंने यहाँ पे दे दिया हूँ डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया हूँ कि अगर डायरेक्शन वाइज जाए तो 20 वोल्ट, दैट इज माइनस प्लस पॉजिटिव, लास्ट पोलैरिटी है तो 20। नाउ करंट का डायरेक्शन अगर सेम रहा, तुम्हारा डायरेक्शन के साथ करंट का डायरेक्शन अगर सेम रहा डेस्टिनेशन तक, तो माइनस आई आर होगा। सो माइनस आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री, so 20 minus v1 minus v2 minus v3, which will give you v minus v1 plus v2 plus v3, which is nothing but your 0। ठीक है, so that is KVL, so that much for। शेयर नहीं हो रहा है सर। हाँ बोलो। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी सॉरी। ओके, तो यहां से v माइनस v1 प्लस v2 प्लस v3, that is equal to 0, which is implemented by Kirchhoff's, and that is known as Kirchhoff's voltage law। तो लास्ट 2-3 मिनट लगेगा और ठीक है, उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। तो Kirchhoff's voltage law कब अभी भी अप्लाई? हाँ बोलो। अभी भी नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो शो दिखा रहा है। एक मिनट रुको। अभी आ रहा है? अभी स्क्रीन आ रहा है? अभी नहीं सर। नो सर। अभी नहीं। एक मिनट रुको, मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, तुम लोग लेफ्ट मत करो, मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग लेफ्ट मत करो, रिजॉइन मत करो, तुम लोग रिजॉइन मत यस सर। करो। मैं लेफ्ट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो देखो, यहाँ पे मैं केवीएल कैसे पुट कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे केवीएल का मेन फंडा क्या है मेरा, अगर सीरीज में कनेक्शन रहेगा
और यहाँ पे दूसरा एक चीज गौर करो, इस सर्किट में ये सर्किट क्लोज है, ठीक है, ये क्लोज है। तो केवीएल विल बी एप्लीकेबल फॉर, फर्स्ट वन इज circuit must be closed. Second one is all the elements should be connected in series। ठीक है, और स्टेटमेंट क्या है, केवीएल का स्टेटमेंट है algebraic sum of all voltages in in a closed circuit will be 0, that is KVL। सो केवीएल हम कब अप्लाई करेंगे, जब तुम्हारा वोल्टेज डिवाइडर और वोल्टेज डिवीजन रूल रहेगा, तभी हम केवीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो सबको समझ में आया यहां तक? यहां तक जो भी पढ़ाई हुआ सबको समझ में आया? हेलो, यहां तक जितना भी पढ़ाई हुआ सबको समझ में आया? यस और नो? यहां तक जितना भी पढ़ाई हुआ सबको समझ में आया? यस और नो? यस और नो? अरे कोई हाँ या ना तो बोलो, ताकि मैं क्लास एंड कर पाऊँ। यस और नो, सबको समझ में आया? अच्छा, अगर समझ में आया तो रेज योर हैंड। अगर सबको समझ में आया तो रेज योर हैंड। वहां पे देखो हैंड रेज का ऑप्शन है, रेज योर हैंड, सो आई विल अंडरस्टैंड दैट कि तुमको समझ में आया, वरना मेरा खुद डाउट रहेगा कि समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया सर। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हो, बता रहे तुम्हारे क्वेश्चन सेंटेंस का सेंस खत्म में क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर तुम लोगों को ये क्लास का बैकअप चाहिए, ये वीडियो का बैकअप चाहिए, 3-4 घंटे के लिए रुक जाओ, टीचमेंट में ऑटोमेटिकली क्लास वीडियो में रिकॉर्डिंग्स में अपलोड हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है फिर भी मेरे पास ये है, मैंने वीडियो को जो रिकॉर्ड किया हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड। क्लियर नहीं आ रहा है सर। साउंड अभी क्लियर आ रहा है? अभी क्लास खत्म है, ठीक है, मैं 2-3 बात कह दूंगा, ठीक है, तो आपस में ये कन्वे कर लेना। अगर टीचमेंट में अपलोड नहीं हुआ वीडियो, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, डू नॉट टू वरी, आई विल अपलोड इट इन माय यूट्यूब चैनल, एंड थ्रू माय यूट्यूब चैनल यू कैन एक्सेस द वीडियो ऑफ टुडेज क्लास। ओके, नेक्स्ट तुम लोग बताओगे, अगर कल टाइम हुआ तुम लोगों का, नेक्स्ट सेम टाइम से कल क्लास लूंगा, ये बैकअप क्लास। तुम लोगों को क्या लगेगा कि सर बैकअप क्लास चाहिए, तो यू विल इन्फॉर्म मी, ठीक है, एंड आई विल कंडक्ट द क्लास। ओके, so now I am going to conclude the class।